पिछले लेक्चर में हमने रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा था और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज उसके ड्रॉबैक्स, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स, एंड देयर आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड बोर्स थ्योरी ऑफ द हाइड्रोजन एटम. First we come to the limitations of Rutherford's model. Dear students, according to Rutherford's model, electron revolves around the nucleus with constant speed. But due to continuous change of the direction of the moving electron, this motion is the accelerated motion, obviously, because the direction is continuously changing. So, what happens that according to classical or the old electromagnetic theory, an accelerating electron must radiate energy, and due to this continuous loss of energy, the radius of the moving electron, orbiting electron, must continuously decrease, and ultimately the electron is bound to collapse into the nucleus. But actually it is seen that an atom is stable. So Rutherford's model could not explain stability of atoms. Then second limitation is that according to Rutherford's model, an electron can revolve in orbits of all the possible radii. So it should emit a continuous spectrum of electromagnetic radiation. But again, practically an atom always emits a discrete emission spectrum. Now let us first see what spectrum is. Dear students, what happens that if we take a gas in a discharge tube which is having two terminals or two electrodes and current is passed through the gas at low pressure, so it is seen that every gas radiates characteristic radiations of the gas. So it is seen that these radiations are discrete, means certain wavelengths are emitted by the gas, and this is known as the emission spectrum. So it was seen practically that the emission spectrum is always discrete, but according to Rutherford's model it should have been continuous like the upper one. यहाँ पर हम देख रहे हैं ऊपर वाली स्पेक्ट्रम को देखिए तो कंटिन्यूअस उसमें चेंज हो रहा है, वेवलेंथ का कलर चेंज हो रहा है, मतलब वेवलेंथ चेंज हो रही है, लेकिन एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली जो मिला वो नीचे वाला स्पेक्ट्रम मिला. इसका मतलब रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हमें डिस्क्रीट एमिशन स्पेक्ट्रम क्यों मिला, कंटिन्यूअस क्यों नहीं मिला. इसके कारण से रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल डिफीट हो गया, फेल हो गया. Then dear, we come to postulates of the Bohr atomic model. So first postulate of Bohr's atomic model is the nuclear concept. According to the nuclear concept, an atom consists of a small and massive central core called nucleus, around which electrons revolve, just like the planets revolve around the sun. जिस तरह से planets sun के around मूव करते हैं, अपना मोशन करते हैं, ठीक इसी तरह से. एंड दीज ऑर्बिट्स आर आल्सो कॉल्ड शेल्स और एनर्जी लेवल्स. तो जो सेंट्रीपेटल फोर्स है, कोई भी यदि बॉडी वी नो दैट इज मूविंग इन द सर्कुलर पाथ, इट नीड्स सेंट्रीपेटल फोर्स. तो इलेक्ट्रॉन को जो सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जो सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस. क्योंकि क्या है, देखिए कि न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियस बहुत हैवी है अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट. तो ये मैसिव न्यूक्लियस जिसमें कि चार्ज पार्टिकल है, तो क्या करेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है
पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, तो ये प्रोटॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं अट्रैक्टिव फोर्स से, विच इज द कूलम्बियन फोर्स। तो इस तरह से कूलम्बियन फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन को नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है। Then second postulate of the Bohr is quantum condition. According to the quantum condition, an electron can revolve around the nucleus only in those orbits which we call the stationary orbits, in which its angular momentum is an integral multiple of factor h upon 2 pi, where h is the Planck's constant. So in class 11th we had studied about the angular momentum. Angular momentum is m into v into r. So it must be n times h upon 2 pi, where n is equal to 1, 2, 3 and so on. तो क्वांटम कंडीशन क्या हुई कि कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि किसी भी रेडियस में वो ऑर्बिट कर सकता है, नॉट एट ऑल। इसमें इन्होंने कहा कि केवल वो परमिटेड ऑर्बिट्स होंगे जिनके लिए उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। मतलब यदि इलेक्ट्रॉन का मास m है और वो v वेलोसिटी से किसी r रेडियस के ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा m v इंटू आर। तो ये m v इंटू आर मस्ट बी इक्वल टू n h अपॉन 2 पाई according to the quantum condition given by Bohr. Then we come to the frequency condition. According to third postulate, when an electron makes a transition from one permitted orbit to the other, it emits or absorbs energy. This energy is equal to the energy difference between the initial and final energy levels. तो सेकंड पोस्टुलेट में बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल परमिटेड ऑर्बिट्स में ही रह सकते हैं, परमिटेड ऑर्बिट्स में ही रह करके वो ऑर्बिट कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या है कि वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिशन कर सकते हैं। तो जब ट्रांजिशन होता है तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, माना कि पहले इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी लेवल में था और उसकी एनर्जी ई इनिशियल थी, ई आई, बाद में वो ट्रांजिशन होकर के हायर एनर्जी लेवल में चला गया और वहां पे उसकी एनर्जी हो गई ई एफ। तो ये जो दो एनर्जीज का डिफरेंस है, इट मस्ट बी इक्वल टू एच टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। क्योंकि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए, और यदि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाए तो वो एच न्यू एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करके लोअर लेवल से हायर में जा सकता है, या हायर लेवल से लोअर में यदि वो ट्रांजिशन करता है तो वो एच न्यू एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी कंडीशन। देखिए इस डायग्राम में यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन दिखाया गया है n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 में, और यहां पर हम देख रहे हैं कि जो इन दो n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 2 जो ऑर्बिट्स हैं, इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन की अलग अलग करस्पॉन्डिंग एनर्जीज हैं, उनके डिफरेंस के बराबर एनर्जी का फोटोन इसने एमिट किया, क्योंकि ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है। Then we come to the Bohr's theory of hydrogen atom. First of all, we will calculate the expression for the radius of nth orbit. So
To explain line spectra of atoms, Niels Bohr proposed that the angular momentum of the electrons orbiting the atom is quantized. और ये सेकंड कंडीशन में उन्होंने कहा था. तो इस कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi. So we give this equation name equation number 1, where m is mass of the electron, r is radius of the orbit, and v is orbital speed of the electron. Now the electron is experiencing uniform circular motion, so only force on it is attractive force between the negatively charged electron and the positive nucleus. So here what is happening, that the positive nucleus provides necessary centripetal force for the movement of the electron by providing this electrostatic attractive force, and this electrostatic attractive force is k into z e square upon r square. क्योंकि हम जानते हैं कि electrostatic force between two charges is equal to k into first charge into second charge upon r square, where r is the distance between the charges. तो यहाँ पे एक चार्ज तो है इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज है e, और दूसरा चार्ज है न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस का चार्ज है z टाइम्स e, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है, z प्रोटॉन्स हैं और एक प्रोटॉन का चार्ज है e. तो एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए जो न्यूक्लियस फोर्स लगाएगा उस पे वो लगाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एंड दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स बाय द इलेक्ट्रॉन. देयरफॉर एम वी स्क्वायर विल बी के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर. और वी कैन से दैट इफ वी पुट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमने इक्वेशन 1 में देखा था एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, तो हम v को लिख सकते हैं एन एच अपॉन 2 पाई एम आर. अब v की इस वैल्यू को, जो ये वैल्यू गिवन है v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, इस वैल्यू को यदि हम इक्वेशन 2 में रखें, इक्वेशन 2 में फिर से लिख रहा हूं एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर. इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम अबव, v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर इन द बिलो इक्वेशन, देन द रिजल्ट व्हाट वी गेट इज एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m square r square is equal to k z e square upon r. यदि हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करें तो हमें r की जो वैल्यू, जिसको हम कहते हैं जनरलाइज वैल्यू r की आ जाती है फॉर nth ऑर्बिट, r n is equal to n square h square upon 4 pi square m k z e square. अब देखिए फर्दर, हम यदि h जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू को, विच इज 6.63 इंटू 10 raised power minus 34 जूल सेकेंड, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी नो 9.1 इंटू 10 raised to the power minus 31 kg, k की वैल्यू हम जानते हैं 9 इंटू 10 raised to the power 9, Z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाती है, और E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम. तो इस तरह से इन समस्त वैल्यूज को यदि हम इसमें डाल दें, सो वी गेट Rn is equal to 5.29 into 10 raised to the power minus 11 meter into n square. Thus, from this equation, we see that Rn is directly proportional to the square of number of orbit. कौन से नंबर का ऑर्बिट है. तो इस तरह से जो ये रेडियस होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, nth शेल की रेडियस होती है, वो रेडियस उस नंबर के
स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब इसको यदि हम फर्दर इसको सॉल्व करें तो 0.53 एंगस्ट्रॉम भी हम इसको वैल्यू को कह सकते हैं। 5.29 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 मीटर को हम 0.53 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू होती है, इसको हम कहते हैं बोर रेडियस। Then we come to the expression for velocity in the nth orbit. Since we know that mvr is equal to nh upon 2 pi, which we have taken from Bohr's second postulate, so rearranging v can be written as nh upon 2 pi mr. Let this is equation 4. And we have already calculated the value of r previously. अभी हमने किया है, देखिए पीछे बढ़ते हैं। ये r के लिए हमने कैलकुलेट किया था। r की वैल्यू थी n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। अब r की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 4 में रखेंगे तो हमें मिलेगा velocity of the electron in nth orbit, which is vn, is equal to 2 pi k z e square upon n h. So this is the value of the velocity of the electron in electron's nth orbit. यदि इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी में n की जगह पे हम 2 रख देंगे, बाकी वैल्यूज को एज इट इज जो कांस्टेंट्स हमने जैसे पहले पुट किए थे उसी तरह से हम पुट करेंगे तो वेलोसिटी निकल जाएगी। Now we will find expression for the energy of electron in nth orbit. यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर पाथ में, जो कि r रेडियस का सर्कुलर पाथ है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को जो सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा सर्कुलर पाथ में मोशन के लिए वो हो जाएगा mv²/r, and this is provided by the इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स है k इंटू E इंटू जेड ई अपॉन आर स्क्वायर, मतलब k जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यदि हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, ऊपर जो हमने लिखा था एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो हमें इससे काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन मिलता है के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। तो इस तरह से यदि कोई इलेक्ट्रॉन r रेडियस के ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, और पोटेंशियल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस। तो यहां पे K तो K ही है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -e, न्यूक्लियस का चार्ज है Ze, और सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज r। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन comes out to be minus kZe square upon r. Thus, if we see that the total energy En, which is the sum of kinetic energy plus potential energy, this value comes out to be minus kZe square upon 2r. हमारे पास अभी हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन निकाला kZe square upon 2r, फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन निकाला माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। आप इसमें दोनों में देखें
कि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब बाइंडिंग एनर्जी है। तो इन दोनों एनर्जीज का यदि हम सम करें तो बाकी तो देखिए कोई डिफरेंस नहीं है। न्यूमरेटर में दोनों में के जेड ई स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में आर के अलावा 2 का डिफरेंस है। तो यदि इन दोनों को हम एडअप करें तो ई एन मतलब टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इन इट्स nth ऑर्बिट, this comes out to be minus k z e square upon 2r. So this we call equation number 5. अब देखिए हमने r की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है। r is equal to n square h square upon 4 pi square m k z e square। ये r की जो वैल्यू हमने निकाली थी, इसको यदि अब हम इक्वेशन 4 में रखें, इक्वेशन 5 में रखें, तो देखिए ये इक्वेशन 5 से ई एन की वैल्यू आ रही है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, और इसमें हम r की वैल्यू पुट करें तो हमें एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स nth ऑर्बिट, दिस कम्स आउट टू बी माइनस 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e रेज़ टू द पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। Further, we have to note here that kinetic energy is negative times of the total energy. Let us go back and see. देखिए काइनेटिक एनर्जी थी यहाँ पे के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r एंड टोटल एनर्जी क्वेश्चन 5th में आप देख रहे हैं ये है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। तो माइनस का डिफरेंस है, तो केवल जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव टाइम्स होती है, या काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का नेगेटिव टाइम्स होती है। फर्दर हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। तो हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का 2 टाइम्स होते हैं। अब इसको हम देख लेते हैं। We should go back. यहां पे हम देखें पोटेंशियल एनर्जी है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और टोटल एनर्जी है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। बस ये 2 का डिफरेंस है यहां पे। तो यदि हम टोटल एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिल जाती है। अब यदि इस फॉर्मूला में हम पाई एम के जेड ई और एच की वैल्यू पुट करें तो देखें हमें क्या मिलता है। देखिए फॉर हाइड्रोजन z इज इक्वल टू 1, पाई इज इक्वल टू 22/7, m इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻³ kg, K is equal to 9 into 10⁹9. Electronic charge is equal to 1.6 into 10⁻⁻19, and Planck's constant H is equal to 6.63 into 10⁻34 joule second. Then we get En is equal to minus 13.6 upon n square electron volt, where n is the principal quantum number or the number of orbit. Here one thing is to be noted that here we have opted unit electron volt because
electron volt and million electron volt, these are two units which are very often used in the atomic and subatomic level. So I must also tell you that there is a conversion that 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 raised power minus 19 joule. Thus we see that 1 electron volt as compared to joule is a very small unit. So thus we have obtained the general expression for the energy of the electron in the nth orbit, which is equal to minus 13.6 upon n square electron